Morning students, last time we discussed about the coordinate bond and the limitations of the octet rule or Lewis concept of bonding. One of the limitation was that this theory unable to explain the shape of the molecules. Today we can explain the shape of molecules on the basis of Westberg theory. V stand for valence, S stand for shell, E stand for electron, P pair and repulsion. Valence shell electron pair repulsion theory. And this theory was provided by Sedgwick and Powell and later modified by Nijhoff and Clebson. No doubt, if there are diatomic molecule, in that case you will have Lie machine, because by joining 2 points you always get a straight line. It may be like this, it may be this, it may be this. Means it may be H2O2 Cl HCl, HCl H and Cl, 2 points. On joining you will get straight line. By joining 2 points you will always get straight line, but by joining 3 points it is not necessary that you will get a straight line. Suppose this is the third point, you will get a V shape, and if this is the point, then you will get a straight line. So in polyatomic molecules, central atom is surrounded by electron pairs. There may be bond pair, may be lone pair. Then atoms adjust themselves so that they have minimum repulsion between the electron pairs. Why? If there is repulsion is minimum, then they will attain highest stability, means they are at a lowest energy. So in this nature everything tends to stabilize itself. और किस टाइम से करेंगे? जब वो लोअर एनर्जी पे जाएगा, और लोअर एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी. तो रिपल्शंस तो 2 तरह की हो सकती हैं. एक तो बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज bond pair, and the electron pair which is not involved in bond formation is called as lone pair. तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होगी? lone pair रिपल्शन. LP stand for lone pair, EP stand for bond pair. So LP repulsion is greater than LP repulsion than BP. क्योंकि रिपल्शन तो होगी, either there is a covalent linkage or there are some electron pairs which are not involved in bond formation. So in the absence of a lone pair of electrons, molecule or molecular ion have symmetrical shape. They will adjust themselves so that they have a symmetrical shape. And in the absence of, but in the presence of lone pair, of electron molecule have asymmetrical shape. तो अब हम डिस्कस करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के कि कैसे इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया शेप ऑफ मॉलिक्यूल. सपोज द फार्मूला इज AB2. सेंटर में कौन सा होगा? विच इज रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और विच इज बिगर इन साइज समटाइम्स. तो उस केस में अब AB2 कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इस ढंग से होगा ABB. तो अगर एंगल
120 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो रिपल्शन नेग्लिजिबल, ये ध्यान रखें। अब ये सिमेट्रिकल शेप हुई, सब तरफ से ए बी बी, इस तरफ से इधर से इधर से इधर से सब तरफ से एंगल बराबर। अगर मुझे सिमेट्री डिस्टर्ब करनी होती तो क्या करता? वो सिमेट्री डिस्टर्ब कब होती? जब लोन पेयर होता, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तब क्या शेप बनती? वी शेप या बेल शेप। लेकिन अभी कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ दे हैव सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो ये बना। तो इस वजह से कैसी शेप आ गई? लीनियर शेप आ गई, जहाँ पे कितने का एंगल होगा? 180 का एंगल होगा, 180 एंगल, लाइक बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम के दोनों तरफ क्या होगा? Cl एंड Cl। बेरिलियम के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर विद क्लोरीन, ये बना। ऐसे CO2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, 2 electrons are utilized of carbon from this side and from this, there is no lone pair। और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर होगा, बेरिलियम क्लोराइड भी लीनियर होगा, मर्करी के केस में भी there are 2 s electrons or whose both are utilized, or as in this case also you will get a linear shape। Now let us take up the case of AB3। अब AB3 है तो अभी लोन पेयर तो है नहीं, अब लोन पेयर नहीं है तो कैसी शेप होनी चाहिए? इस तरह से होनी चाहिए। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल, और ये पॉइंट उसी ट्रायंगल के प्लेन में आ रहा है, इसलिए क्या बोला? ट्रायंगल प्लेनर शेप, लाइक बोरॉन ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, तो ट्रायंगल प्लेनर शेप हो गया। ऐसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ऐसे ही NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव में कैसे देखोगे? NO3 नेगेटिव में देखोगे N डबल बॉन्ड हो, one of the lone pair is related to oxygen and one negative, because oxygen is more electronegative than oxygen, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? इस पे आना चाहिए। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 लोन पेयर डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बनवाने के लिए, 5 पूरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कोई लोन पेयर इस पे नहीं है। तो जो लोन पेयर है वो किस पे है? ऑक्सीजन पे, तो सेंटर एटम पे तो लोन पेयर नहीं है, तो इस वजह से इस केस में भी क्या शेप होगी? ट्रायंगल प्लेनर शेप होगा। मान लो इसमें से एक हटाकर केवल लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर को मैंने ये दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमेशा के लिए याद रखेंगे शेप हमेशा पोजीशन ऑफ एटम के हिसाब से होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो दिस पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर, तो ये शेप कैसे बने? इंग्लिश लेटर वी, तो इसको हम वी शेप या बेड शेप कहते हैं, लाइक इन SiCl2। SiCl2 में किसकी फैमिली का है? कार्बन की फैमिली का। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए बाय ईच क्लोरीन, तो एक लोन पेयर बच गया, और इस वजह से Si से यहाँ पे Si, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, एक इलेक्ट्रॉन। तो वी शेप बेड शेप AB4 all atoms are tetrahedrally arranged। इसमें कैसे होगा? इस तरह से अरेंजमेंट होगा। आप ये स्पेशल अरेंजमेंट है, ये स्पेशल अरेंजमेंट है।
तो इस वजह से कैसी ज्योमेट्री हुई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लाइक CH4 तो उनके लोन पेयर तो है नहीं, सभी बॉन्ड एंगल कितने के होंगे? 109 डिग्री के। 90 के नहीं कहेंगे, 90 में तो प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे क्रॉस 90 डिग्री। अब ये सभी एटम स्पेस एक ही प्लेन में नहीं, सिर्फ एक प्लेन बनता है, ये अब प्लेन से ऊपर, उससे ऊपर ये CCl4 NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हुए? 5। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितने बच गए? 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो टेट्राहेड्रल शेप अमोनियम आयन SaSiCl4। Ab3L है, तो यानी कि 1 का B इज रिप्लेस्ड बाय lone pair, तो 1 2 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, आर्सेनिक में आए। तो यहाँ पे क्या हुआ? लोन पेयर आ गया। तो शेप किसके हिसाब से होगी? लोन पेयर की वजह से नहीं होगी, पोजीशन ऑफ एटम। एटम तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। और इसके साथ यह क्या बन रहा है? पिरामिड। तो क्या शेप बनी? ट्रायंगल पिरामिडल। ये ट्रायंगल प्लेन था क्योंकि ये उसी प्लेन में था। दिस इज नॉट इन सेम प्लेन। जैसे सेम प्लेन में तो ऐसे होती है, ऐसा तो नहीं हो। तो ट्रायंगल पिरामिडल शेप हुई। एंड नेक्स्ट 5 में से 3 यूज हो गए, एक लोन पेयर पड़ा है। CH3 नेगेटिव, कार्बन के वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 गेन किया, 5 में से 3 यूज हो गए, एक लोन पेयर है। PCl3 फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यूटिलाइज। हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक लूज कर दिया, कितने बचे? 5 में से 3 यूज हो गए। सेम इज NF, इन सभी का ट्रायंगल पिरामिडल शेप होगा। देन Ab2L2, इसमें क्या हुआ? एक और लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे तो अब ये शेप हमेशा पोजीशन ऑफ एटम, तो ये शेप क्या बना रहा है? इंग्लिश लेटर B या बेंड शेप बन रहा है। लाइक NH2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया, तो कितने हो गए? 6 में से यूज कितने हुए? 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H। बॉर्डर है ही वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यूज हुए, 2 लोन पेयर। OF2 H2S सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली में। तो हमने एक और कैटेगरी कर ली कॉरस्पॉन्डिंग टू Ab4, जब 4 अटैचमेंट्स हों में बी ऑफ ड्यू टू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब हम करते हैं AB5। जहाँ मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, दे आर इन सेम प्लेन। अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो ये पांचों एक प्लेन में हो जाएंगे, लेकिन क्या है? ये एक प्लेन में है, दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन इन दिस मैनर। ये है यहाँ पे A, इधर B, इधर B, इधर B, और इधर और तो ये पोजीशन बनेगी इसको। तो ये जो ब्लैक सिरा पेन का है, ये कहाँ? यहाँ पे भी क्या है? B है। तो इनको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये तीनों रोटेट करेंगे। तो इस वजह से इनके लिए क्या मैंने लिखा? स्मॉल a, एक्सियल को रिप्रेजेंट करता है। एक्सियल रोटेट करते तो व्हील सारा रोटेट करता है, और ये क्या कहलाई? पोक्स कहलाई। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो अंडरस्टूड है पोक्स रोटेट करेंगी। तो ये क्या कहलाई? इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल हुए और ये एक्सियल हुए। और शेप कैसा हुई? ट्रायंगल। ट्रायंगल से एक ऊपर पिरामिड बन रहा है इससे, और एक नीचे बन रहा है, तो इसके नाम शेप कैसे हुई? ट्रायंगल पिरामिडल शेप हुई। यानी कि यहाँ पे 3 तरह के एंगल्स आए। एक एंगल तो होगा इक्वेटोरियल, B
इक्वेटोरियल ए, बी इक्वेटोरियल जो कि 120 डिग्री का होगा, दूसरा होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये 120 के होंगे, लेकिन बी इक्वेटोरियल, ये पैरेलल में समझ लेते हैं, पैरों में है, बी इक्वेटोरियल एक्स ए बी एक्सियल, और ये कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये वाला एंगल, यानी ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो आपस में कितने का एंगल बना रहे हैं, ये 90 का बना रहे हैं। देन अनदर बी एक्सियल 180 डिग्री, इसमें सभी एंगल बराबर है, लाइक PCl5, फास्फोरस के वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 के 5 यूज हो गए, इसकी कैटेगरी में आ गए। फास्फोरस आर्सेनिक SCl5 या SF5, इसकी कैटेगरी में ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक एटम रिप्लेस कर देते हैं लोन पेयर से। तो अभी तक था मैं भाई लोन पेयर चाहे मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा दूँ, एक जगह दिखाना है, दो है तो कहीं 2 जगह दिखाना है, तो अब यहाँ पे ये काम नहीं होगा भाई लोन पेयर प्लेन में दिखाऊं या अबव या बिलो द प्लेन दिखाऊं। तो ये अरेंजमेंट करेक्ट है और ये अरेंजमेंट रॉन्ग है। ये अरेंजमेंट क्यों करेक्ट है, ये तो 120 रिपल्शन है, कोई चक्कर ही नहीं है, 120 या उससे ज़्यादा हो तो ये 120 का एंगल है, ये 120 का एंगल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल, में 2 रिपल्शंस हैं जो मेन गिनी जा रहे हैं इसमें। जबकि इस केस में अगर मैं लोन पेयर अबव द कर दूँ तो इस केस में रिपल्शंस कितनी आ जाएगी, 90 का एंगल आ रहा है, 1 2 3, इसमें 3 रिपल्शंस हैं, और अगर ये लोन पेयर प्लेन में आता है तो उस केस में कितनी आ जाएगी, 2 रिपल्शंस आएगी। तो किसको प्रेफर किया जाए, जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम रिपल्शन इसमें 2 रिपल्शन, इसमें 3 रिपल्शन, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने प्रेफर किया। शेप किसके हिसाब से होगी, पोजीशन ऑफ एटम के हिसाब से होगी। अगर पोजीशन ऑफ एटम्स के हिसाब से होगी तो उस केस में कैसी शेप बनेगी, सीसा शेप बनेगी। SF4 है, सल्फर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 के 4 यूज हो गए, एक लोन पेयर पड़ा है, 6 होते हैं, 4 यूज हुए। ऐसे ICl4 पॉजिटिव, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर दिया, 6 में से 4 यूज किया, एक लोन पेयर पड़ा। नेक्स्ट केस देखते हैं, इसी में ही अभी जब फार्मूला AB3L2 हो, AB3L2 हो, तो हमें पता चल क्या, लोन पेयर को कहाँ दिखाना है, प्लेन। तो यहाँ पे ये लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिया, और यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे B आ गया। तो शेप हमेशा पोजीशन ऑफ एटम के हिसाब से, तो ये क्या बन रहा है, इंग्लिश लेटर T, तो इसकी कैसी शेप हुई, T शेप, लाइक ClF3 और XeO2। Cl सेंट्रल एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 में से यूज कितने हुए, 3 4 2 लोन पेयर,
तो दो तो लोन पेयर हुए, 3 एटम हुए जो से अटैच हो रहे हैं। इस केस में क्या होगा, एक ज़ीनोन के तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फ्लोरीन कितने यूज करती है, 2। एक फ्लोरीन 1, 2 फ्लोरीन 2, और 2 इलेक्ट्रॉन किसने यूज किए, ऑक्सीजन ने। टोटल 4 यूज हुए, आउट ऑफ 8 4 यूज हो गए, बचे कितने, 4, 2 लोन पेयर। यानी कि इस केस में इस ढंग से होगा, बनेगा XE, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे F, यहाँ पे F, वही टी शेप बनी। 2 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। Then next is Ab2L3. तो हमें मालूम पड़ चुका है लोन पेयर्स को कहाँ दिखाना है, प्लेन में। क्यों, मिनिमम रिपल्शन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे दिया है। तो कैसे शेप हुई, लीनियर, क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम, ऑल एटम्स आर इन ए सेम प्लेन। XeF2 इसकी कैटेगरी क्या है, एक ज़ीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 8 2 यूज हो गए, बाकी 6 3 लोन पे, 6 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक हो गया। ऐसे ही ICl2 नेगेटिव, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया, 8 हो गए, 8 में से 2 यूज हो, क्लोरीन अबव एंड बिलो द प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं AB6। इस केस में पार्टिकल शेप होगी A B B B B B B, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो क्या बना, SF6, सेंटर में सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन। अगर मैं एक लोन पे रिप्लेस कर दूं, AP5L हो गया, इसमें सब एनिमल्स 90। तो क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन लोन पेयर को देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, अब तो सभी एंगल्स बराबर हैं, कहीं पर भी लोन पेयर दिखा सकता है। तो ये क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और इस D के साथ क्या बनेगा, पिरामिड। तो क्या बना, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, लाइक ClF5 और XeOF4। ClF5, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 में से यूज कितने हुए, 5, बाकी 2 मतलब 1 है, वही 5 बॉन्ड विद फ्लोरीन, 1 पोजीशन लोन पेयर, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल शेप हो। इसी को देख करके बस ये कहा कि रिप्लेसमेंट किया मैंने लोन पेयर से, और कुछ नहीं किया, उससे शेप चेंज हो रही।
HCl4 में क्या हुआ, 4 तो इस आउट ऑफ 8 4 इसने यूज़ किए, 2 इसने किए, 6 यूज़ किए, बाकी बचे 2। तो इस वजह से HCl4 का बनाना हो तो क्या करेंगे कि ये लोन पेयर, ये F F F F, अब वही स्टेप पिरामिडल शेप हो गया। ये डॉटेड लाइन दिखाना जरूरी है ताकि पता चले ये फ्लोरीन प्लेन में, ये इसके प्लेन में नहीं है। नेक्स्ट AB 4 L2, तो क्या करें, एक और जगह लोन पेयर दिखा, A B B B और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। आप किसी और जगह नहीं दिखा सकते। कैसी शेप बनी, स्क्वायर प्लेन, क्योंकि शेप हमेशा पोजीशन ऑफ एटम के हिसाब से होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो XeF4 अगर होगा तो इसकी कैटेगरी में आएगा, ICl4 नेगेटिव होगा तो इसकी कैटेगरी में आएगा। आयोडीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 गेन किया तो 8 हुए, 8 में से 4 यूज हो गए, बाकी कितने बचे, 4 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 अटैचमेंट, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ क्लोरीन 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 और इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर। तो इस ढंग से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक काम तो कर दिया, हमें बता दिया कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप करेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।